Yes, now we are going to start with convolution. In the last class, we have discussed the properties of a Fourier transform. So now we will discuss the convolution. So convolution is a mathematical operation which is used to express the input and output relationship in a LTI system, linear time invariant system. It basically it is used to express the input and output relationship. So mathematically, the convolution of two in time functions. If we have two time functions x1t and x2t, suppose we have two time functions x1t and x2t, then their convolution is expressed as x1t x2t. It is this notation is for the convolution, or at times and circle multiplication sign in a circle also denotes the convolution of two time functions. So if it is given to you like this x1t and x2t, then it denotes the convolution. So convolution of two time functions x1t and x2t is given by the mathematical expression like this: x1 tau x2t minus tau. It is x1 tau x2t minus tau into del tau. So this is your convolution. Now further the convolution, this is the convolution theorem is associated with the Fourier transform. So then further we have two convolution theorems, time convolution and frequency convolution theorem. We have frequency convolution theorem and time convolution theorem. So first we will discuss the time convolution theorem. Here the limits will be from minus infinity to infinity. Now what is time convolution theorem? Time convolution theorem states that the convolution in time domain, that if the convolution in time domain, it is equivalent of their spectra in frequency domain. It is equivalent to multiplication of their spectra in frequency domain. Suppose we have a time domain signals x1t and its Fourier transform is x1 omega, right? हम यही लिखते थे Fourier transform is xt का Fourier transform is x of omega. अगर आपके पास x2t है, एक और सिग्नल है, if you have x2t then its Fourier transform is x2 omega. Now time convolution theorem states that the convolution of these two signals in time domain, they are in time domain, so the convolution of these two two time domain signals x1t convolution with x2t, it is equal to multiplication of their spectra in frequency domain, means x1 omega into x2 omega. यहाँ आपका convolution नहीं आएगा. So this is the time convolution theorem. We will derive this expression. आपको इसके क्वेश्चन भी आ सकता है सब्जेक्टिव में कि explain the time convolution theorem or frequency convolution theorem, or explain the two theorems of convolution. So first is the time convolution theorem. Now we will derive this time convolution theorem. We know that the Fourier transform, if we have a Fourier transform of any signal, suppose Fourier transform of x of t, it is given as x of omega, and its formula is minus infinity to infinity
minus infinity to infinity x of t e raised to power minus j omega t dt. This is the Fourier formula for Fourier transform. Now, if I want a Fourier transform of two signals, now if I will write f of x1t convolution with x2t, then I can write x1 t convolution with x2t in this, in place of xt. Then it would be minus infinity to infinity x1t convolution with x2t e raised to power minus j omega t dt. In this formula, I have substituted the value of this value in this formula. Now, in the starting, I have told you that convolution of two signals x1t and x2t किसके equal होता है? It is equal to minus infinity to infinity x of x1 tau into x2 t minus tau into del tau. Is it clear? यहाँ तक what we have done? Simply I have written the formula for the Fourier transform. F of xt. Formula for Fourier transform, it is minus infinity to infinity xt e raised to power minus j omega t dt. Now if I have x1t and x2t, x1 to t convolution with x2t, then I have substituted this in this expression. In the formula of Fourier transform, I have substituted the value. Now, I have told you that the convolution of two signals x1t convolution with x2t is given by this formula. This is the formula of convolution. Then it is x1t convolution with x2t is minus infinity to infinity x1 tau x2t minus tau into del tau. This is the formula. Now, Fourier transform of x1t convolution with x2t. अब ये जो x1t convolution of x1t with x2t, इन दोनों का convolution का जो formula है वो हम यहाँ substitute कर सकते हैं in this expression where we have written x1t convolution with x2t. There we can substitute this. So जब हमने Fourier transform find out करना है x1t and x2t का, we will substitute this formula in this. So आपका ये आ जाएगा minus infinity to infinity. Again आपका ये formula मैं यहाँ substitute कर रही हूँ in this expression. It is minus infinity to infinity x1 tau x2 t minus tau into del tau e raised to power minus j omega t dt. Is it clear till now? Any confusion? Yes, ma'am. Okay. Then after that हमने Fourier transform में इसकी values substitute कर ली जो convolution का हमने formula लिखा था. Now I will do nothing. I am just rearranging the terms. I am going to rearrange the terms. So आपका ये आ जाएगा f of x1t convolution with x2t. ये आ गया आपका minus infinity to infinity. मैं x1 tau को इस लिमिट से बाहर ले रही हूँ. ये आ गया आपका x1 tau. सेकेंड लिमिट के अंदर वी हैव टू लिमिट्स. यहाँ जो आपका ये फॉर्मूले वाली भी आ गई, एक लिमिट आपकी पहले से थी, तो आपका एक ये आ गया e रेज टू पावर x1 टाउ को मैंने बाहर ले लिया तो आपका अंदर ये रह गया. अंदर आपका आ गया e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी x2 t माइनस टाउ इंटू dt इंटू डेल टाउ. ये चीज आ गई आपके अंदर. अब आपकी एक प्रॉपर्टी थी दैट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, इफ यू रिमेम्बर,
आपकी एक टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी थी, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। सो इस फॉर्मूले में आपकी टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी कहाँ है? मैम जो इसका सेकंड पार्ट बन रहा है वो वाला। यस, दिस इज योर टाइम, ये आपकी टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी होती थी। यस मैम। अगर आपका x2, ये आपका एज इट इज रहेगा ई रेस टू, इसमें अब देखो आपका ये टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है कि x2t - टाउ है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ, यही आएगा आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। तो वी कैन राइट इट कि आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी x2t माइनस टाउ dt इज x2 ओमेगा ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ। अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, अच्छा इसको हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने डिराइव किया था तो आपका ये चीज आई थी x2 ओमेगा इंटू ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू टाउ। जितने फैक्टर से आपका डिले हो, आपका ये अब क्या हो रहा है, दिस इज योर डिले, डिले हो रहा है, उतना ही आपका ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ से फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ई रेस टू पावर, जितने से आपका यहाँ डिले है उतने से मल्टीप्लाई हो जाता था ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ से। अगर यहाँ प्लस होता तो ये ई रेस टू पावर जे ओमेगा टाउ लिख सकते थे हम यहाँ। सो ये हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की, तो आपका जो पहले यही आया था एफ ऑफ x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t, ये आपका था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ टाउ हमने कॉमन ले लिया था x1 टाउ यहाँ, एंड हेयर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो आपने, हमने अभी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दिस इज योर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर आपने, हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके इस चीज को सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू ये आ गई, इट इज x2 ओमेगा इंटू ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ इंटू डेल टाउ। अब इसमें से x2 ओमेगा को आई कैन टेक इट एज कॉमन, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। देन आपका लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ इंटू डेल्टा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपका किसका है, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है? मैम एक्स ऑफ ओमेगा। इसमें x1 ओमेगा, यहाँ x1 है तो ये x1 ओमेगा आ जाएगा आपका, उसी का ही फॉर्मूला है जो ये आपका, यही फॉर्मूला होता है एक्स टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ टी की जगह आपका क्या है, टाउ है, यस मैम। सिंपल वही फॉर्मूला है आपका, बट हेयर इन प्लेस ऑफ टी वी हैव टाउ। तो हम इसे ये लिख सकते हैं x1 ओमेगा इस कंप्लीट, ये उसी का ही फॉर्मूला है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, दिस इज द, इस x1 ओमेगा का यही फॉर्मूला आएगा। हेयर यू कैन राइट टी, कुछ भी लिख सकते हो जैसे आपका ये फॉर्मूला होता है एक्स टी रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो ये आपका ऑलरेडी था x2 ओमेगा, तो ये आपकी प्रूफ हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t इंटू कॉन्वोल्यूशन विद x2t इज x2 ओमेगा इंटू x1 ओमेगा, यही आपकी थ्योरम थी। आपकी जो टाइम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है ये क्या स्टेट करती है कि अगर आपके पास टू सिग्नल्स हैं इन टाइम डोमेन, इफ यू हैव टू सिग्नल्स इन टाइम डोमेन x1t एंड x2t, और अगर आप उनकी कॉन्वोल्यूशन ले रहे हो, so the convolution in time domain, this is the convolution in time domain that is equal to multiplication of their spectra in frequency domain. Now these are their Fourier transforms, x1 का Fourier transform x1 ओमेगा, x2 का Fourier transform क्या है, x2 ओमेगा।
कि अगर दो सिग्नल्स की आप टाइम कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो उनका जो दे आर इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्पेक्ट्रा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. दिस इज द टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम. इन दिस व्हाट वी हैव डन, हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल एक्स टी is minus infinity to infinity x t e raised to power minus j omega t dt. Then हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म करना किसका है, x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t. इन दोनों का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t. तो ये हमने इस अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया. इन प्लेस ऑफ xt we have substituted x1t convolution with x2t. Then after that in the starting I have told you that जो कॉन्वोल्यूशन होती है उसका फॉर्मूला क्या है, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू टाइम डोमेन सिग्नल्स x1t and x2t, the convolution of two time domain signals is equal to minus infinity to infinity x1 tau x2 t minus tau del tau. Then इन दिस फॉर्मूला जो जहां आपका x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t था वहां मैंने ये फॉर्मूला ये सारा एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो आपका ये चीज आ गई, x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t की जगह मैंने ये पुट कर दी तो आपका ये चीज आ जाएगी. देन आई हैव जस्ट रीअरेंज्ड द टर्म्स, मैंने x1 टाउ को कॉमन ले लिया, आपका लिमिट यहाँ आ गई तो आपके पास ये चीज आ गई. नाउ यूजिंग द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसे आप यूज करोगे तो ये वाली टर्म है जो आपकी e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी एक्स टी टी माइनस टाउ, ये इसके इक्वल आ जाएगी. एक्स टू ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ इसके इक्वल आ जाएगी. तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया. एंड यहां से जो x1 टाउ ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डेल टाउ ये किसका फॉर्मूला था, x1 ओमेगा का. ये इसी का ही फॉरियर ट्रांसफॉर्म है. एंड x2 ओमेगा ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है. तो ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई. यही चीज हमने डिराइव करनी थी कि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन of two signals is equal to multiplication of their spectra in frequency domain. ये आपकी टाइम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम थी. नाउ वी हैव सिमिलरली वी हैव फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. सेम ऐसे ही हम डिराइव करेंगे, वो ऑपोजिट आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. नाउ फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपकी क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस इन टाइम डोमेन, कि अगर हम टू फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इन टाइम डोमेन दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ देयर स्पेक्ट्रा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. उनका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा. अगर हम दो सिग्नल्स को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीनिंग कि हमारे पास टू सिग्नल्स हैं, एक्स टी है एक वाई टी है. सपोज वी हैव टू सिग्नल्स and multiplication of these two signals. Now look, we are multiplying these two signals x1t and xt and yt. It is equal to the convolution xt की convolution x ओमेगा, yt की convolution y ओमेगा. सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म के अगर कॉन्वोल्यूशन करोगे एंड डिवाइडेड बाय 1/2 पाई, इट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल्स इन टाइम डोमेन. ये आपकी ऑपोजिट है, इसमें 1/2 पाई भी आ जाएगा. नाउ जो आपकी टाइम डोमेन वाली थी वो आपकी क्या कहती थी कि अगर एक्स टी, ये आपकी टाइम डोमेन वाली प्रॉपर्टी थी, आई एम राइटिंग अगेन, कि एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद वाई टी, आपके पास टू सिग्नल्स हैं एक्स टी एंड एक वाई टी, अगर आप इनकी कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो इन टाइम डोमेन दैट इज इक्वल टू
मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्पेक्ट्रा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन कि एक्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय वाई ओमेगा। बट फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपकी क्या स्टेट करती है कि अगर आप टू सिग्नल्स को इन टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ देयर स्पेक्ट्रा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डिवाइडेड बाय 2 पाई, कि ये चीज होगी बट इसमें 2 पाई से डिवाइड भी हो जाएगा। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा, वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ओमेगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनकी कॉन्वोल्यूशन आ जाएगी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है आपकी। अब इसको भी हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे सॉल्व जैसे हमने पहले किया था। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक्स टी एंड वाई टी जो आपका एक्स टी एंड वाई टी है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? जेड टी के। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि दोनों का जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल टू जेड टी। तो जेड टी, अगर मैंने जेड टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है वो क्या आएगा? जेड ओमेगा आएगा। इसका फॉर्मूला जो जेड ओमेगा है वो किसके इक्वल होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और आप यहाँ इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक्स टी वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यही है। एंड इन दिस आई विल यूज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करूंगी। तो एक्स टी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म? हम ये लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं लिख रही हूँ एक्स टी का। इट इज एक्स ऑफ ओमेगा लिख लो चाहे लैम्डा लिख लो, यहाँ कुछ भी लिख लो, ई रेस टू पावर जे। अगर यहाँ ओमेगा लिख रहे हो तो यहाँ भी आपका ओमेगा आएगा, बट हेयर आई एम राइटिंग लैम्डा, तो मैंने यहाँ लैम्डा ले लिया टी क्योंकि ओमेगा मेरा ऑलरेडी यहाँ है, इंटू डी लैम्डा। ये आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। ये चीज आपकी आनी चाहिए हेयर। अगर आप यहाँ एक्स ओमेगा लिख रहे हो तो ई रेस टू पावर जे ओमेगा ही यहाँ आना चाहिए आपका। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक आपका डिफरेंस होता है, एक तो 1/2 पाई से डिवाइड हो जाता है और एक यहाँ आपका पॉजिटिव साइन आता है, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होता। एंड यहाँ आपका टी नहीं आता, यहाँ डी लैम्डा आएगा। अगर यहाँ ओमेगा है तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा। ये आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। जस्ट रिटन द फॉर्मूला। तो जो मैंने यहाँ एक्स टी की इक्वेशन लिखी है, ये चीज लिखी है यहाँ पे, इसमें एक्स टी की यहाँ पुट कर दो, ये फॉर्मूला इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ पुट कर दो और इसे सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा था जेड ओमेगा, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? जेड टी का। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड टी। देन आई हैव रिटन एक्स टी वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। Then in the next step, I have written the formula of inverse Fourier transform कि xt आपका कैसे आएगा, ये आपका इस फॉर्मूला से आएगा। देन ये जो xt का जो फॉर्मूला है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, वो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। yt को एज इट इज, सिर्फ xt का हमने फॉर्मूला पुट करना है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? z omega is equal to minus infinity to infinity 1/2 पाई minus infinity to infinity x of lambda e raised to power j lambda t d lambda into yt e raised to power minus j omega t dt। ये ओमेगा यहाँ ऑलरेडी था इसीलिए हमने यहाँ लैम्डा ले लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग।
यहाँ आपका ये ऑलरेडी था, ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये सारा एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ आपने एक्स टी की वैल्यू पुट करनी है। हमने सिर्फ एक्स टी की वैल्यू पुट किया इन दिस एक्सप्रेशन, रेस्ट इज सेम, ये आपका सेम है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 1/2 पाई को कॉमन ले लिया, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ लैम्डा को फॉर अ टाइम बिंग वी आर जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म्स, बाहर आ गया। तो अंदर आपका क्या रह जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू पावर जे लैम्डा टी डी टी डी लैम्डा। अब इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा माइनस लैम्डा इंटू टी डी टी इंटू डी लैम्डा। ये आपका एज इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ लैम्डा 1/2 पाई। अब मुझे ये बताओ, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी के इक्वल है, ये वाला। अगर आपका वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे इंटू ओमेगा माइनस लैम्डा टी डी टी डी लैम्डा है, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये किसके इक्वल आएगा आपका? मैम वो आएगा ई टू पावर माइनस जे ओमेगा लैम्डा डी लैम्डा। नहीं बच्चे, ये ऑपोजिट दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर आपका ऐसे गिवन है तो ये सारा आपका वाई टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वाई ऑफ ओमेगा होता था। बट अगर आपका ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा में माइनस लैम्डा है, तो आपका यहाँ भी वाई ऑफ ओमेगा माइनस लैम्डा आ जाता है। इसे हमने कैसे किया था, आपकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वाई टी है ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वाई ऑफ ओमेगा। अगर आप ओमेगा में माइनस लैम्डा कर रहे हो, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी वाई ऑफ ओमेगा माइनस लैम्डा आ जाता है। ये प्रॉपर्टी थी, याद करो, ये हमने डिराइव भी की थी प्रॉपर्टी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर आपका वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो वाई ऑफ ओमेगा आ जाएगा। इसका यही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर ओमेगा में आप इतने का शिफ्ट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को अगर शिफ्ट कर रहे हो, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी शिफ्ट आ जाता है। आई याद प्रॉपर्टी? यस मैम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की है। बच्चे, जो प्रॉपर्टीज हमने की थी वही प्रॉपर्टीज आपकी यूज हो रही हैं, और कुछ नहीं है, बाकी सारे सिंपल स्टेप्स हैं। सिर्फ मैंने यहाँ भी यूज की है प्रॉपर्टी, हियर आई हैव यूज्ड द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहले आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हुई थी। तो प्रॉपर्टीज को फिर से देखना एक बार, वही यूज हुई है आपकी प्रॉपर्टीज। तो ये दिस इज योर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी शिफ्ट आएगा। अगर आपका ये बेसिक फॉर्मूला होता था वाई टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ ओमेगा था। जब हमने इसे प्रूव किया था, तो अगर ओमेगा माइनस लैम्डा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है इसमें ओमेगा में, तो आपका यहाँ भी शिफ्ट होगा। इसका जो आंसर आएगा वो वाई ऑफ ओमेगा माइनस लैम्डा ये आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन में 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ लैम्डा वाई ऑफ ओमेगा माइनस लैम्डा डी लैम्डा, ये आ गया। अब मुझे यहाँ बताओ कि ये किसके इक्वल है। ये चीज हमने अभी की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, एक्स लैम्डा वाई ऑफ, बताओ ये किसके इक्वल था। ये ऐसा मैम वो फॉर्मूला हमने किया है। x1t इंटू x1t कॉन्वोल्यूशन विथ x2t। यस, यहाँ ये आपका किसके इक्वल होता है, कॉन्वोल्यूशन के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ x2
टी माइनस टाउ, यही फॉर्मूला हमने किया था। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 पाई। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे हम एक्स ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विथ वाई ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। ये आपकी फाइनल आ गया, और ये जेड ओमेगा। यही हमने प्रूव करना था। सो ये तो थी हमारी टू प्रॉपर्टीज कॉन्वोल्यूशन की, दैट इज कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन एंड कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन।